ये क्वेश्चन नहीं करी शायद। नहीं, लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन की थी. We discussed when we put id equal to vd equal to 0, then id is equal to is, id equal to 0, and इस तरीके से हमने कुछ वैल्यूज पुट करके we also discussed the Jenner region. You guys remember this? No, sir, we didn't do this last. Yes, sir. हाँ, ये आपके लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स का जो हमारे डायोड के हैं उसमें फॉरवर्ड बायस में डिफरेंट होता है, रिवर्स बायस में डिफरेंट होता है. नाउ इन रिवर्स बायसिंग the current is in the range of microampere that you can see here on the y-axis for the reverse bias region. That is for negative voltage, negative VD. And this reverse in the reverse bias, most of the time the current flowing through the diode is constant, which is equal to IS, and we call that as reverse saturation current IS. Only the current in reverse bias region increases abruptly only when we have crossed a particular limit of the applied voltage, and that's when our diode enters into the Zener region, or you can say the reverse breakdown region. After that, your diode enters in a region where the depletion region broke. जब टूट जाती है तो उस रीजन में वहां हम पहुंच जाते हैं, and then the current starts flowing rapidly. So with the value of the IS and taking the reference value and the exponential relationship that exists in the current and voltage of the diode, we reach to a mathematical expression which could give the what we say approximate relationship between applied voltage across the diode and current flowing through it, which is given by this equation. So there is a factor of IS, and then there is a factor of exponential in which we have the parameter, variable parameter VD. Other parameters K and TK. TK is your simply temperature in Kelvin at which your diode is operating, and small k is a constant defined by 11,600 divided by eta. Now, value of eta is generally taken as 1 if we are operating in steep region. Steep means a region of high slope. तो अगर आप यहाँ देखेंगे, after 0.7 volt in forward bias region, most of the diodes will give you a high slope characteristic curve of VI. So in that particular region, we will take the value of eta as 1, but in the regions of slow slope or low slope, we will take the value of eta depending upon the type of material that we have used to manufacture the diode. That is, for silicon, we will take eta equal to 2, and for germanium, we will take eta equal to 1. Now, keep putting these values in this equation. If you are given the value of VD, that is voltage applied across a diode, you can calculate the amount of current that will be flowing through the diode. किसी ने दिखा रखी. Hello, please mute yourself. भाई मैं WhatsApp गलत खोल दिया. हाँ हाँ. Hello. अलग का मैसेज आ रखा था. हाँ. अलग. माड़ी करनी. बात नहीं करनी आती मेरे को. क्यों? बात करनी आती. कुछ नहीं बस. अरे And then we discuss how the diode reaches in that particular Zener region or reverse breakdown region. There are two particular ways or phenomena due to which this can happen, and those phenomena are avalanche breakdown and Zener breakdown. For avalanche breakdown, you should remember that it happens due to the high velocity of the minority carriers, which results into higher kinetic energy, which further results into generation of more carriers and an avalanche current flows through the diode. Whereas in Zener region, this generally happens when we have high doped materials of P side and N side of the diode, due to which there is a very strong electric field which develops as we apply the. Sir, your voice is lagging. Okay. So due to the high doping, a strong electric field develops across the depletion region,
when we keep on increasing the reverse biasing voltage, which results into weakening the bonding forces that exist in the atomic structure of the diode. And then there are those bonds break and more number of carriers are generated, which results into further higher value of current. So that happens due to high doping. So high doping results into Zener breakdown, and low doping, which results into high velocity of the minority carriers. That will be the cause of the avalanche breakdown. But in general, we will say that the reverse breakdown reason is our Zener reason. Okay, this we discussed in the last lecture. Now let's compare the VI characteristics for different diodes. Now in this figure we can see three different VI characteristics for germanium, for silicon, and for gallium arsenide. Now in general, this silicon diode have higher value of PIV. PIV means the peak inverse voltage after which your diode enters into the Zener region. That is in the range of thousands of volts for silicon, whereas for germanium it is in the range of 400 volts. Okay, same way, silicon can be used for applications in which the temperature may rise to about 200 degrees Celsius. So silicon diode can withstand temperatures of 200 degrees Celsius, whereas for germanium diode it is around 100 degrees Celsius. Now gallium arsenide has more benefits over silicon and germanium also. You can see in the curve that the biasing voltage, that the PIV rating of gallium arsenide on the reverse region is much higher than silicon and germanium. Now जितनी आपकी PIV रेटिंग्स ज्यादा होती हैं, ठीक उसी तरीके से उसके जो नी वोल्टेज है जो फॉरवर्ड रीजन में हमें चाहिए वो भी ऑटोमेटिकली उनकी ज्यादा रहती है. Now you can see here that germanium starts conducting a high amount of current in forward bias voltage just after we apply 0.3 volt. But for silicon it starts conducting high current after 0.7 volt. बार-बार ऑन ऑफ हो रहा है. And for gallium arsenide it is 1.2 volt. मैंने अपना चला रखा. So the disadvantage of silicon, please unmute yourself, whoever it is. Okay, so this is the one disadvantage of having silicon diode, because to make it enter into the conducting zone, we have to apply at least 0.7 volt of forward biasing voltage. So that will depend upon our application where we want to use these. And the increase offset for silicon is due to primarily to the factor of equation 1.4. So equation 1.4 was the same equation that I showed you, which was showing exponential relationship between ID and. Sorry, your voice is lagging again. Your voice is lagging. Okay, now is it okay? Sir. No. Yes, sir. Sir, okay. Okay, now it's okay. Yes, sir. Hello. Okay. So there we learned about the factor of eta. So eta was equal to 2 for silicon. That's why we have the different voltages for knee voltages for different diodes. Now you also have to remember that once the curve starts its vertical rise after the knee voltage, in that particular region we have to take the value of eta equal to 1 for different diodes. Germanium और silicon के लिए आप 1 और 2 वैल्यू जो पहले लेते थे, that is for the regions where amount of current rise in the current is very low with respect to applied voltage. But एक बार आपका vertical region में जब enter कर जाता है, उस केस में हम eta की वैल्यू 1 लेंगे. And generally this particular voltage is known as offset voltage, threshold voltage, knee voltage, or we can also say firing potential. After that, the diode gets fired and high amount of current flows through it. So these are different characteristics of germanium and silicon.
For your reference, you can also learn about the gallium arsenide, but in this course, we will stick to the silicon and germanium diodes. Okay, so thermal voltage, the threshold voltage for silicon is 0.7 volt, and for germanium it is 0.3 volt. तो अगर आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे डायोड को बहुत लो वोल्टेज पे भी ऑन करना है, एकदम से हाई अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, तो इन दोज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस यू विल यूज जर्मेनियम डायोड. बट यू अगर आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आपके रिवर्स के अंदर हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज तक विथस्टैंड करना चाहिए डायोड को, और हाई टेम्परेचर्स पे काम करना चाहिए डायोड को, फॉर दैट वी विल यूज सिलिकॉन डायोड बिकॉज इट हैज हायर PIV रेटिंग्स एंड इट हैज हायर टेम्परेचर. It can stand to higher values of temperature. Now let's see the effect of temperature on the VI characteristics of the diode. So in this figure, the central line that is for orange color, that is at room temperature, that is 25 degrees Celsius. Now if you use your diode at higher temperature or lower temperature, then the amount of current flowing through it will also change and its VI characteristic curve will also change. So focus on the forward bias situation here. The rise in temperature shifts the VI characteristic curve near to the current axis, that is Y axis. So you can see here the very first line left right to the ideal axis, current axis, at 25 degrees Celsius plus delta T. It means 25 से temperature कुछ आपका ज़्यादा है. So for same applied voltage, the amount of current flowing through the diode will increase. If we operate the diode below 25 degrees Celsius, that is the rightmost curve in blue color or violet color at 25 degrees Celsius minus delta T, then amount of current flowing through the diode decreases and VI characteristic curve shifts away from the Y-axis. A similar situation is observed in reverse biasing, but the order is now also reversed. You can see here that for lower temperature, the breakdown region is near, breakdown region occurs for low voltages of reverse biasing voltage. Okay, but the one simple, you can say the approximate rule for that is that the reverse saturation current IS will just about double in magnitude for every 10 degrees Celsius increase in the temperature. So for a particular temperature, let's say 25 degrees Celsius, we have the value of current IS as 2 microampere. And now if we increase the temperature by a factor of 10 degrees Celsius, then the value of IS will be doubled. If we decrease it by 10 degrees Celsius, then the value of IS will be half. Okay, so you have to remember all in this particular approximation formula. That will be helpful for you in solving different numericals. In general, you have to you must understand this, that the rise in the temperature makes the forward VI characteristic curve shift towards the Y-axis. And for reverse bias region, rise in temperature shifts the VI characteristic curve away from the X-axis, away from the voltage axis. आपका जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें अमाउंट ऑफ करंट भी ज्यादा बढ़ता है और वो आपका काफी आगे जाके फिर उसका ब्रेकडाउन हो पाता है. So this is the effect of temperature on the VI characteristic curve of a diode. Okay, now let's discuss one of the important topics in diode, and it is related to your practical purpose or your usage of the diode. जब भी आप डायोड को यूज करेंगे उसकी एक पर्टिकुलर बायसिंग होती है, या तो फॉरवर्ड बायसिंग होगी या रिवर्स बायसिंग होगी. फॉरवर्ड बायसिंग में भी आपकी एक पर्टिकुलर वोल्टेज होगी डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी डीसी वोल्टेज है और आपकी एसी वोल्टेज है. नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट एनी कंपोनेंट, वेदर इट इज active component or passive component that you use in circuits, all of the components have some kind of resistance, and we have to calculate that value of resistance in order to get exact values in the
एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स इन द सर्किट, कि ये वाला जो कंपोनेंट है वो कितना रजिस्ट कर रहा है, कितना इसका रेजिस्टेंस है, वो हमें जानना जरूरी है. For diode, these resistances are of two types. One is your DC resistance, that is static resistance. This value of resistance will be calculated when we are applying only DC voltage to the diode. अब आपको पता है कि जब आप DC वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ही DC वोल्टेज की उसको डायोड के अक्रॉस मिलेगी. So application of a DC voltage to a circuit containing a semiconductor diode will result in an operating point on the characteristic curve that will not change with time. Now, this particular point here is operating point. You have to understand what do we mean by operating point. Operating point for any diode consists of two values, current value and voltage value. जैसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को कंसीडर करके एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और वहां पे हमारा एक पॉइंट होता है जिसमें एक एक्स एक्सिस के लिए वैल्यू होती है, एक वाई एक्सिस की वैल्यू होती है, उससे मिलके ही हमारा जो है वो पॉइंट बनता है. तो ठीक उसी तरीके से ऑपरेटिंग पॉइंट भी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो है डायोड का, उस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के ऊपर एक पॉइंट है. तो हमारी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है तो ऑब्वियसली उसकी दो वैल्यूज होंगी, एक वोल्टेज की वैल्यू होगी, एक करंट की वैल्यू. उस ऑपरेटिंग पॉइंट की वैल्यूज की वजह से हमें ये पता चल जाता है कि किस पर्टिकुलर रीजन में हमारा डायोड काम कर रहा है. अगर आपको ये पता लग जाए कि उसकी वोल्टेज जो है वो V इज इक्वल टू 5 वोल्ट है और I इज इक्वल टू उसका 50 मिली एम्पियर है, तो उससे आप पता लगा सकते हो कि आपका डायोड किस रीजन में काम कर रहा है, कि वहाँ पे आपका स्लोप जो है वो ज्यादा है या वहाँ पे आपका स्लोप कम है, या वो रिवर्स बायसिंग में काम कर रहा है. रिवर्स बायसिंग में इट इज ऑपरेटिंग नियर दी breakdown region, or it is in between the breakdown region, or it is in the what you say the very low slope of the forward bias voltage. तो आपकी VI characteristics में किस पॉइंट पे वो है, वो आपको अगर पता चल जाए, then you can understand the behavior of the circuit based on that operating point. और उसी ऑपरेटिंग पॉइंट पे हम निकालते हैं DC रेजिस्टेंस RD. अगर आपको ये पता है कि सर्किट में आप यू विल यूज ओनली 5 वोल्ट बैटरी डीसी वोल्टेज, तो आपको ये पता लग जाएगा कि हाउ मच रेजिस्टेंस विल बी ऑफर्ड बाय द डायोड डिपेंडिंग ऑन द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डायोड. सिलिकॉन डायोड है तो सिलिकॉन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स कब निकालेंगे, उस पर्टिकुलर वैल्यू पे हम उस आईडी की वैल्यू देखेंगे. जर्मेनियम डायोड है तो हम उसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व को अंडरस्टैंड करेंगे. नाउ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इज वेरी सिंपल, VD डिवाइड बाई ID. जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पे आप ऑपरेट कर रहे हो उस पर्टिकुलर वोल्टेज पे थ्योरेटिकली कितनी उसके अंदर करंट आना चाहिए जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व दिए हुए हैं, वहां से आप वैल्यू निकालेंगे I की, एंड फ्रॉम देयर यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. दैट विल बी द DC और स्टैटिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड. आप लोगों को इसमें से कोई डाउट आप अभी पूछ सकते हैं. तो अगर आपको अभी कोई सर, VI कैरेक्टरिस्टिक्स, यस सर ऑपरेशन पॉइंट मतलब वही है जिस पर डायोड काम करेगा. हाँ, इस वो आपका चेंज होता रहता है, लेकिन चेंज वो रहता है आप उसमें कितनी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो डीसी के केस में. लेकिन एक बार आपने डीसी के लिए मान लीजिए 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो फिर उस पर्टिकुलर सर्किट के लिए उसका ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो फिक्स हो जाएगा. ओके सर. यस. नाउ दिस इज वन एग्जांपल. आप लोग इसको अभी कैलकुलेट कीजिए कि डिटरमाइन द डीसी रेजिस्टेंस लेवल फॉर द डायोड in this figure at value ID equal to 2 milliampere, 20 milliampere and VD equal to minus 10 volt. निकालिए, I am waiting. Try to calculate the value of DC resistance of a diode which have characteristics curve as shown here.
कैलकुलेट किया आपने? किसने कैलकुलेट किया? वैल्यू बताइए आप फर्स्ट केस के लिए। सर ए के लिए 250 ohms, सर 250, 40 और 10 की 10 की पावर पावर 7। के पावर Yes, sir. 7 लास्ट वाला। हाँ जी 7 और 6? 7। 7 7 आएगा सर। Okay. तो 7 So now you understand. Now you can calculate the value of DC resistance for any diode. ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट तो नहीं है अभी किसी भी स्टूडेंट को? No sir. नो सर। Okay. Yes. Okay. Now let's move on to the second part of the resistance level. That is AC और dynamic resistance. अब जब हमने DC लेवल्स की DC रेजिस्टेंस की बात की तो हमने ये चेक किया कि उसका ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है, कि मतलब हम कितनी वोल्टेज उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसमें एक ही वैल्यू आती है क्योंकि DC वोल्टेज है। बट सपोज हम उसको AC वोल्टेज देंगे तो AC वोल्टेज में तो आपका स्विंग होता है कि वो -5 से 5 तक एग्जिस्ट करता है आपका वोल्टेज सिग्नल, या -2 से 2 तक करता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर तो एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग पॉइंट नहीं हो पाएगा, उसकी वैल्यू तो चेंज होती रहेंगी। तो फॉर दैट वी विल यूज द सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए इस कर्व में थोड़ा सा ब्लर्ड है, थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। जो बिल्कुल राइट मोस्ट फिगर है, बिल्कुल राइट मोस्ट फिगर जिसमें डेल्टा वीडी लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो डेल्टा वीडी? Yes. यस सर। Yes sir. ठीक है, तो उसमें एक साइन कर्व, साइन वेव बनी हुई है, वो भी दिखाई दे रही है। Yes sir. Yes, sir. Yes sir. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज वाले एक्सिस पे जिस जिस रेंज में हमारा एसी सिग्नल हो सकता है उस रेंज में एक साइन वेव बनाएंगे। तो सपोज आपकी ये वाली जो वेव फॉर्म है वो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेके इस तरीके तक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके इस रेंज में आपकी वैल्यू है। तो एक्स एक्सिस पे मान लीजिए हमारी ये वैल्यू जो है यहाँ पे 3 वोल्ट है और यहाँ पे 5 वोल्ट है। ठीक है, या जो भी आप उसकी रेंज ले सकते हो। तो यहाँ पे हम उस वोल्टेज सिग्नल को अप्लाई करेंगे और जिस जिस रेंज में ये वोल्टेज सिग्नल होता है उसके पैरेलल में हम लाइंस खींचते जाएंगे, एक जीरो के लिए, एक जो मैक्सिमम है उसके लिए और एक जो मिनिमम है उसके लिए। और जब उस लाइन को खींचते जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि वो हमारे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को कहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, तो उसने जो कट किया, जो लोवेस्ट था उसने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, जो हाईएस्ट वैल्यू थी वोल्टेज की उसने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, और जो मिडिल वैल्यू थी उसने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। ठीक है, तो ये तो आप इंटरसेप्ट देख सकते हो वोल्टेज के हिसाब से जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में आ रहा है। मतलब हमारे वोल्टेज में तो चेंज होगा दैट वी विल अप्लाई अक्रॉस द डायोड, दैट इज फ्रॉम हियर टू हियर। और उस पर्टिकुलर वोल्टेजेस के लिए, उस रेंज for that range of voltages, the VI characteristics curve tells us that the current will swing like this. इस रेंज में आपका करंट जो है वो चेंज होगा, that is in the range of delta ID. आपने बेसिक वोल्टेज अप्लाई किया 5 वोल्ट से लेके 5.2 वोल्ट तक, and for that particular range आपका करंट चेंज हो रहा है from 1 मिली एम्पियर to 100 मिली एम्पियर। तो आपको वो सारी रेंज जो है वो देखनी है कि करंट की क्या क्या वैल्यूज आपकी आ रही है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो अप्लाइड वोल्टेज में हम निकालेंगे डेल्टा वीडी और करंट में हम निकालेंगे डेल्टा आईडी। ठीक है, एंड रेशियो ऑफ दीज डेल्टा वीडी एंड डेल्टा आईडी दैट विल गिव अस एसी रेजिस्टेंस आरडी। सो इट इज अवर डायनामिक रेजिस्टेंस, इट चेंजेस विद द हेल्प विद द वैल्यू ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट। आपने इसी वोल्टेज सिग्नल को जिसका मिडिल पॉइंट यहाँ पे था, इसको अगर शिफ्ट करके आप यहाँ पे ले आओगे तो आपकी रेंज ऑफ वैल्यूज दैट विल बी ऑब्टेन्ड बाय वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईडी। आईडी की जो वैल्यू है वो डिफरेंट आएंगी। तो दिस डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट दैट इज डिसाइडेड बाय द डीसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड। हम डायोड के अक्रॉस एक मान लीजिए 3 वोल्ट की बैटरी लगा के हमने हमेशा छोड़ दी, और उसके बाद हम प्लस में उसके एसी सिग्नल भी दे रहे हैं।
तो दैट मीन्स हम ये चाहते हैं कि जो डायोड का ऑपरेटिंग पॉइंट है उसका वो ये वाला रहे हमारा, और इसके अक्रॉस फिर अब हम देख सकते हैं कि उसमें वोल्टेज में कितना चेंज हो सकता है। आपने ऑपरेटिंग पॉइंट 3 वोल्ट पे फिक्स कर दिया, फिर आप उसको 2 वोल्ट का एसी सिग्नल दे रहे हो, तो दैट मीन्स उसमें आप वोल्टेज की रेंज के आगे क्या हो सकती है, 3 + 2 5 वोल्ट एंड 3 - 2 1 वोल्ट। तो 1 से लेके 5 वोल्ट तक की वोल्टेजेस विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय द डायोड, एंड ऑन दोज वोल्टेज रेंजेस वी विल सी द वैल्यू ऑफ करंट रेंज ऑब्टेन्ड। उसमें आपकी करंट की रेंज हम ऑब्टेन करेंगे, वहां से डेल्टा आईडी निकालेंगे, तो उससे आपका जो है वो एसी का रेजिस्टेंस, एसी रेजिस्टेंस निकल जाएगा। बट सेम डायोड, सेम इनपुट सिग्नल ऑफ 2 वोल्ट, बट ऑपरेटिंग पॉइंट अगर हम चेंज कर दें, अब 3 वोल्ट की बैटरी की जगह अगर हम 6 वोल्ट की बैटरी लगा दें, तो उसमें क्या होगा, द वोल्टेज रेंज एक्सपीरियंस बाय द डायोड विल बी 6 + 2 8 एंड 6 - 2 4। 4 से 8 के बीच में अब वो वोल्टेज एक्सपीरियंस करेगा। उस केस में हो सकता है आपका जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो और आगे चला गया, ऊपर चला जाएगा, तो फिर आपको करंट की रेंज जो है वो डिफरेंट एक्सपीरियंस होगी। डेल्टा वीडी आपका अभी भी सेम है उतना ही, बट डेल्टा आईडी इज योर डिफरेंट। जब डेल्टा आईडी आपका चेंज हो जाएगा, तो दैट मीन्स योर रेजिस्टेंस विल आल्सो चेंज। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट डायनेमिक रेजिस्टेंस। इट चेंजेस विद द एप्लीकेशन ऑफ द with the operating point of the diode. Operating point is also sometimes called as our Q point, quotient point. Okay, and in general, the lower the Q point of the operation, higher the AC resistance. अब ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। अगर आप Q point यहाँ पे लगते हो लोअर, उसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर डेल्टा VD के लिए रेंज ऑफ करंट जो आएगी वो कम आएगी, डेल्टा आईडी आपका कम आएगा, डेल्टा आईडी आपका डिनोमिनेटर में है, कम आएगा तो वो ज्यादा वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस देगा। सेम डेल्टा वीडी के लिए आप ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट करो, तो थोड़ा सा डेल्टा वीडी होगा उतना ही जितना पहले था, लेकिन उस केस में आपका डेल्टा आईडी बहुत ज्यादा मिलेगा, तो डिनोमिनेटर आपका ज्यादा हो गया है तो रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। तो सेम डायोड will offer you different AC resistances for different operating points when we apply the same AC signal. ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है when solving your numerical. ठीक है, इसको हम एक न्यूमेरिकल से आगे देखते हैं, थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो डेल्टा वीडी अपॉन डेल्टा आईडी, दैट इज योर स्लोप ऑफ द कर्व एट पर्टिकुलर पॉइंट। आप स्लोप जब निकालते हैं तो भी हम ऐसे ही निकालते हैं। ये आप यहाँ पे दूसरे डायग्राम में देखिए जो नीचे बना हुआ है, जो रेड कलर का कर्व है आपका, तो रेड कलर के कर्व में डेल्टा वीडी अपॉन डेल्टा आईडी वो आपका जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। For the characteristics on given in figure 1.29, you have to determine the AC resistance at ID is equal to 2 milliampere. तो आप थोड़ा इसको ऑब्जर्व करो और एक रेंज आइडिया सा बताइए कि कैसे करोगे, या आपकी वैल्यू निकाल सकते हो डायरेक्टली तो वो निकालिए। You have to calculate the AC resistance at ID 2 milliampere. एक्चुअली सर जो पहला वाला उसका आंसर 350 ओम आ रहा है। कैसे कैलकुलेट किया आपने बताइए? सर वही मतलब आरडी का फॉर्मूला जो है क्या कहते हैं, फर्स्ट पहले वोल्टेज आ गई वीडी अपॉन आईडी, तो जैसे वीडी जैसे आपने कहा 2 मिली एम्पियर, तो बेसिकली हाँ सर एक मिनट 0.7 डिवाइड बाय 2 से 0.35 आएगा। नहीं वो तो आपका डीसी रेजिस्टेंस आया ना, यहाँ पे हम एसी रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं।
अच्छा ओके ओके। तो एसी रेजिस्टेंस में आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप से निकलेगा। तो आप एक क्या करो, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, जो यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ है। Sir, 27.5. 27.5 ohms. 27.5 यस सर 27.5 ओम्स आ रहा है। कितना लिया आपने डेल्टा वीडी? So delta VD 0.11. 0.11 और आईडी, डेल्टा आईडी ID 4 milliampere. आईडी 4 तो नहीं आ रहा, बाकी सबका भी 4 आ रहा है क्या? हाँ सर, वो 4 minus 0 होगा ना? हाँ सर वो आईडी तो 4 ही होगा, 4-0। ठीक है, तो आईडी आपका 4 हो गया और वीडी कितना हुआ? डेल्टा वीडी 0.1। 30 ओम आ रहा है। नहीं, आपने डेल्टा वीडी 0.1 लिया है कि 0.11? 0.11 0.12 लिया। 0.15. अच्छा हाँ, मतलब आप उसको जो भी रेंज आए तो अराउंड 28 ओम 27.5 ओम इस रेंज में आपका फ्री आ जाएगा। Yes sir. ठीक है, अब आप सेकंड वाला करने की कोशिश कीजिए। पार्ट डी, डिटरमाइन द एसी रेजिस्टेंस एट आईडी 25 मिली एम्पियर। इसमें आपका डेल्टा आईडी तो डायरेक्टली निकल जाएगा। कितना आया डेल्टा आईडी? Sir, the screen is not clear. डेल्टा आईडी 10 मिली। Sir 3 ohms. डेल्टा आईडी तो आपका 30 - 20 10 आ जाएगा। और 3 ohms. डेल्टा वीडी के अभी देखना पड़ेगा, आप कैलकुलेट कीजिए, मुझे भी नहीं पता। ब्लर आ रही है इसमें। अभी भी ब्लर आ रही है। सर 2 ओम्स। Delta ID will be your 10 milliampere and delta VD is around 0.02. So Yes, sir. 0.02 यस सर। divide by 10. तो ये 0.02 That's कैसे it. निकाला? स्केल में तो दिख ही नहीं रहा। ये आपको बस अंदाजे से ही निकालना है। जैसे पिछली बार आपने 0.11 लिया था। तो 2 ओम आ रहा है। मैंने 0.03 ले लिया, उससे 3 ohm आ रहा था। अच्छा नहीं, वो ठीक है आपका। अगर आपको ग्राफ नहीं दिया हुआ है स्केल के हिसाब से, तो वो आप अपने हिसाब से वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो जनरली आपका क्या होता है, पूरा वो आपकी ग्रिड बनी होती है, जिसमें तो ग्रिड के हिसाब से Okay, आप sir. आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एसी रेजिस्टेंस। अब आपको क्या करना है, सेम दोनों ही पॉइंट पे डीसी रेजिस्टेंस भी निकालिए। सेम पॉइंट एट 2 मिली एम्पियर एंड एट 25 मिली एम्पियर। कुछ डिफरेंट आ रहा है? यस सर। सर एक 350 ohms आ रहा है और दूसरा 31.2 ohms। तो डीसी रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। ज्यादा आ रहा है। हाँ, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि सेम डायोड आपने यूज किया, अगर आप उसका डीसी रेजिस्टेंस निकालते हो तो वो ज्यादा ऑफर करता है, बट एसी रेजिस्टेंस आपका कम आ रहा है। एनी रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा है? एनी कमेंट आपके द्वारा इसके ऊपर? जया शर्मा। Yes, sir.
क्या लगता है आपको ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा एसी रेजिस्टेंस ज्यादा कम आ रहा है एज कम्पेयर टू डीसी रेजिस्टेंस? जरूरी नहीं कि आपका आंसर ठीक हो, आपको जो लगता है आप थोड़ा बताइए। अच्छा चलो आप इसको ऐसे ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, एक आपका न्यूमरेटर पार्ट है, एक डिनोमिनेटर पार्ट है, ठीक है। डेल्टा वीडी हम ज्यादातर केस में फिक्स ही रख रहे हैं, सेम डेल्टा वीडी रख रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन फैक्टर है वो है आईडी का। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी ये वाली वैल्यू ऑफ करंट आती है और ये वाली वैल्यू ऑफ वीडी हम ले लेते हैं। लेकिन जब एसी रेजिस्टेंस निकालने की बात करते हैं तब हम इसकी एक रेंज लेते हैं और इसकी एक रेंज लेते हैं। आप ध्यान से देखिए, आप वीडी की रेंज तो बहुत कम है और उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर आपका आईडी की रेंज बहुत ज्यादा है। तो फॉर सम वैल्यूज ऑफ वीडी विच आर हायर देन दिस वैल्यू, आपकी करंट की वैल्यू ज्यादा है, एंड फॉर सम वैल्यूज इट इज लेस, ठीक है। लेकिन आपको ये पता है कि आपका इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो जो वैल्यूज आईडी की आपकी आती हैं, हायर वैल्यूज ऑफ वीडी आफ्टर दिस ऑपरेटिंग पॉइंट वो ज्यादा आती है और उससे कम के लिए आपकी थोड़ी सी कम आती है। तो आपको नुकसान कम होता है, फायदा ज्यादा होता है और एसी वोल्टेज। दूसरी चीज, हम एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ना जाके चेंज इन वैल्यूज के ऊपर देख रहे हैं। वीडी आपका हो सकता है यहाँ पे 5 वोल्ट हो, या जैसे अभी हमने देखा 0.8 वोल्ट आ रहा है, 0.79 वोल्ट आ रहा है, लेकिन जब हम डेल्टा वीडी को देख रहे हैं तो वो हमारा कितना बन जाता है, 0.02 वोल्ट। उसमें हम पर्टिकुलर चेंज को देख रहे हैं। वी आर नॉट क्या बोलते हैं, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द एग्जैक्ट वैल्यू, बट वी आर कंसर्न अबाउट द स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है। इसका और अच्छे से रीजन जो है वो आपको, ये आपके लिए एक होमवर्क है, आपको खुद सर्च करना है, ढूंढना है, पहले सोचना अपने आप, फिर आप बुक्स को रेफर करना, ठीक है, गूगल को रेफर करना, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस, कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, ठीक है, ओके, ये आप सबके लिए एक्सरसाइज यस है ये। सर। ओके, अब हम एक छोटी सी डेरिवेशन और है जो हमारी एसी रेजिस्टेंस को लेकर ही है, ठीक है। इफ यू कैन रिकॉल, दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी सबसे ऊपर लिखी हुई है, आई डी इज इक्वल टू आई एस इंटू एक्सपोनेंशियल के वी डी बाई टी के माइनस आई एस, और हमें निकालना है डेल्टा वी डी अपॉन डेल्टा आई डी, या फिर आप डी वी डी अपॉन डी आई डी कह लीजिए, स्लोप ऑफ द कर्व। तो आप यहाँ से उसको निकाल सकते हो। You simply differentiate this equation with respect to VD. You try to solve this equation. थर्ड इक्वेशन पे हम उसको आ जाइए, आपको आप यहाँ तक बड़ी इजीली पहुंच जाओगे कि डी आई डी बाई डी वी डी इज इक्वल टू के बाई टी के इंटू आई डी प्लस आई एस। आप खुद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार देखेंगे तो आप आराम से यहाँ तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक अजम्पशन यूज करेंगे कि योर डायोड करंट इज वेरी high as compared to the saturation current IS। IS से तो आपकी काकुस की वैल्यू काफी बड़ी होती है, IS इज जनरली इन माइक्रो एम्पियर, हम बात कर रहे हैं मिली एम्पियर। तो हम फिर IS को जो है वहां से इक्वेशन से गायब भी कर देते हैं। ID plus IS will be approximately equal to ID। So that from there we come to the equation number 4, DID upon DVD is nearly equal to K by TK into ID, ठीक है। फिर हम सिंपली पुट करेंगे वैल्यूज ऑफ दीज वेरिएबल्स के एंड टी के। तो के आपको पता है 11600 बाई ईटा, ईटा हम अभी 1 ले रहे हैं, अज्यूमिंग दैट वी आर ऑपरेटिंग इन दी हाई स्लोप रीजन, तो वहां से के की वैल्यू आपकी सिंपली 11600 आ गया। टी के हम मान लेते हैं कि हम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस 298 डिग्री टी के। फिर आप राइट में आ जाइए इक्वेशन पे, वहां से हमने के बाई टी के निकाला, वो आया 38.93। इस के बाई टी के को हम रख देंगे इस वाले इक्वेशन के अंदर, तो डी आई डी बाई डी वी डी विल बी इक्वल टू दिस। इसका रिवर्स कर दो तो डी वी डी बाई डी आई डी आपका 0.026 बाई आई डी, ठीक है। 0.026
26 को हम 26 भी लिख सकते हैं. So your dynamic resistance, formula for dynamic resistance for germanium and silicon diodes, if they are operating in high slope region, हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 26 मिलीवोल्ट डिवाइडेड बाय ID. आपको ID की जो भी वैल्यू दी जाए, you can simply put the value of ID and you will get the value of dynamic resistance. आपको ध्यान ये रखना है कि these are for high slope region. अगर आपका lower slope वाला रीजन है, उस केस में आपकी ईटा की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है फॉर डिफरेंट डायोड. तो वो 1 है कि 2 है उस पर डिपेंड करेगा. तो जर्मेनियम है तो आपका सेम फॉर्मूला काम कर जाएगा, लेकिन अगर सिलिकॉन है तो यहाँ पे आपका डिवाइड बाय 2 और आ जाएगा एक फैक्टर. यहाँ पे अगर 2 आएगा तो यहाँ पे भी 2 आएगा. वो तो फिर डिवाइड में है तो वो ऊपर जाके दुगना होगा. तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक माइनर चेंज आ जाएगा. बट यू हैव टू, ये वाला फॉर्मूला आपका मेन है फॉर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन. थोड़ा बहुत चेंज आपका ईटा की वैल्यू से आ सकता है, वो आपको फिर दोबारा कैलकुलेट करना. ठीक है. नाउ यू कैन कैलकुलेट, डायरेक्टली कैलकुलेट दी वैल्यूज ऑफ डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ दी डायोड. ठीक है. सो दैट्स इट फ्रॉम फॉर टुडेज लेक्चर, एंड टुडे वी डिस्कस दी डिफरेंट डायोड्स की जो हमारे थ्रेशोल्ड वैल्यूज हैं उसको हमने डिस्कस किया. देन वी डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दैट every rise of 10 degrees Celsius in temperature doubles the reverse saturation current. Then resistance levels, DC resistance and AC resistance, or the importance of the operating point or the quotient point in the calculation of AC resistance. ठीक है. फिर हमने दो न्यूमेरिकल्स किए, एक DC के लिए और एक AC के लिए. Then we discussed this derivation of the value for expression of dynamic resistance. तो अभी तक आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे से पूछ सकते हैं. आप घर पे भी अगर कुछ कर रहे हैं और आपको कुछ डाउट आ रहा है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी ऑन व्हाट्सएप. सर आपको जब आप घर पे रिवाइज करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, कुछ भी आप सोल्व करने की कोशिश करते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता, यू कैन ऑलवेज आस्क मी ऑन व्हाट्सएप. ठीक है. So if you don't have any doubt, then I think we should end this meeting. Yes. सर वो एक बार बता देना आपने डीसी रेजिस्टेंस और एसी रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करी ग्राफ से. ग्राफ में तो डायनेमिक डीसी रेजिस्टेंस में तो सिंपली आपको दो वैल्यूज निकालने हैं. इस पॉइंट पे अगर आपको डीसी रेजिस्टेंस निकालना है, यहाँ पे ग्रिड से आप जो भी आपको स्केल दिया है वीडी वैल्यू निकालो, आईडी निकालो, आपकी वैल्यू आ जाए. एसी रेजिस्टेंस में आपको स्लोप निकालना पड़ेगा. तो जैसे यहाँ इस पॉइंट पे निकालना था तो हमने इस तरीके से स्लोप डाला, ये डेल्टा वीडी निकाला और यहाँ इतना ही डेल्टा आईडी निकाला. कई बार आपको कुछ वैल्यूज रेफरेंस के लिए दे दी जाती हैं, जैसे यहाँ पे है. अब यहाँ पे अगर आप स्लोप बनाने की कोशिश करोगे तो वो लाइन के साथ साथ ही आता है, वो थोड़ा मुश्किल होता है. तो इसने क्या किया, यहाँ पे इसने डेल्टा वीडी भी दिया हुआ था और डेल्टा आईडी भी दिया हुआ. ये आप खुद भी निकाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है. आप यहाँ पे एक स्केल से एक टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो टेंजेंट जो है वो यहीं तक ही आ पाए, ये ऐसे ही बने. ठीक है. उस टेंजेंट में फिर जैसे हमने यहाँ पे एक रेंज ली है एक्स एक्सिस पे, एक रेंज ली है वाई एक्सिस पे. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा वीडी एंड डेल्टा आईडी. वी टेक द रेशियो टू फाइंड आउट द एसी रेजिस्टेंस. अगर ये भी आपको गिवन नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, तो आपको फिर इस तरह की वैल्यूज दी जाएंगी कि सिलिकॉन डायोड है ऑपरेटिंग इन हाई स्लोप रीजन, तो इटा इक्वल टू 1. यूज दिस फॉर्मूला and you can calculate the value of dynamic resistance. इसमें आपको ये हो सकता है कि वो ID की वैल्यू ना दे लेकिन VD की वैल्यू दे दे. तो फिर आप क्या करोगे, VD की वैल्यू पुट करेंगे पहले इस इक्वेशन में, यहाँ से हम निकालेंगे ID की वैल्यू और दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VD, फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे. तो आपके अभी तक जो है वो 2 या 3 इक्वेशन से आई हैं, जिसमें से वन फंडामेंटल इक्वेशन इज दिस, इसी से आपके आगे की चीजें होती हैं, और दूसरी है आपकी ये वाली VD, ID, IS एंड RD. 4 आपके पैरामीटर्स हैं. IS उसमें से आपका कांस्टेंट है. ठीक है. 3 पैरामीटर्स हैं, उनमें से कोई एक या दो एक की वैल्यू आपको दी जाएंगी, बाकी वैल्यूज आपको निकालनी. इस तरीके से आपके क्वेश्चन. ठीक है. Okay, now it's time. Now I'm ending this meeting. Yes.
So could you just open that slide jहाँ पे you've told about the temperature dependence? Just a second, I just wanted to note it down. सर ये पीपीटी आप एलएमएस पे अपलोड कर सकते हो? पीपीटीज और वीडियोस एलएमएस आने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके लिए कुछ थोड़ा सा काम चल रहा है। तब तक आप क्या कर सकते हो, ज्यादातर मैंने जो भी डायग्राम्स और रेफरेंसेस लिए हैं वो आपकी बुक से ही लिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको आपकी बुक यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ न्यू शेयर करके। सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दो एक बार। ये देख लीजिए, ठीक है। तो मैंने यही वाले फिगर्स, यही एक्सप्लेनेशन, सेम एग्जांपल्स आपके यूज किए हैं ताकि आपको जो है वो उससे अंडरस्टैंडिंग रहे। ये वाला कर्व हो, चाहे वो पहले के कर्व आपके जिनर ब्रेकडाउन के कर्व हो, और जो सेकेंड मटेरियल जो मैं आई विल एडवाइस कि आप वो वाला मटेरियल यूज करें, वो आपके हैं वीडियोस ऑफ द लेक्चर्स अवेलेबल ऑन द ई कंटेंट लिंक। जो एसी एनालॉग पार्ट के लिए जो आपकी वीडियोस अवेलेबल हैं वो आपकी काफी ध्यान में रखते हुए बनाए गए, उसमें आपका काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, ठीक है। अभी जैसे हम क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं 50 मिनट की क्लास में जो है वो आपका, चलो अभी टाइम कंप्लीट हो गया, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।